Hello, class 11. Okay, so we'll continue with 12th night today. We had done till here, जहाँ पर we see that वायला और ओलिविया की फिर से मुलाकात होती है एंड ओलिविया जो है शी confesses her love for Cesario openly, like actually Cesario is Viola herself, ठीक है, in the disguise of a young boy. तो जब वो कन्फेस करती है अपना लव ओपनली ससेरियो के लिए, वायला के लिए, देन वायला जो है शी बिकम्स लाइक बहुत ज़्यादा, उसको लगता है कि क्या अजीब सी बात चल रही है, पता नहीं, और सीनो के लव के लिए आई थी वो यहाँ पे प्लेड करने के लिए एंड यहाँ पर सब कुछ उल्टा हो गया मिस्टेक इन आइडेंटिटी की वजह से, कन्फ्यूजन हो गई है बहुत ज़्यादा. ओके, सो शी लीव्स द प्लेस हेस्टली, जल्दी जल्दी वो वहाँ से पैलेस से जाती है. No sooner had Viola left the lady than a claim was made upon her valor. A gentleman whose suit was rejected by Olivia challenged Viola to fight a duel. Poor Viola, though dressed like a man, had a true woman's heart, and so she feared to look at her own sword. When she saw the formidable opponent advancing towards her with open sword, she began to think of confessing to him that she was actually a woman in the guise of a young boy. So now what happens, ये mistaken identity को लेकर confusion शुरू हो गई थी. ओके, जस्ट वो पैलेस छोड़ ही रही थी, जा ही रही थी पैलेस से कि उसकी एक जेंटलमैन से मुलाकात हो जाती है. वो जेंटलमैन ऐसा रहता है कि वायला ने उसको कभी ओलिविया ने उसको कभी रिजेक्ट किया हुआ होता है, लेकिन कभी रिजेक्ट करती है ओलिविया उसको. तो वो ये बात बोलता है कि अगर तुमको अपनी ब्रेवरी दिखानी है तो मुझसे लड़कर, मुझसे एक फाइट करके लाइक दिखाओ, तुम अपनी ब्रेवरी साबित करो. ओके, नाउ वायला जो रहती है, दो शी इज ड्रेस लाइक अ मैन, ससेरियो बनी हुई घूम रही है वो हर तरफ, लेकिन शी हैड अ ट्रू वुमेन्स हार्ट. उसका दिल तो लाइक एक औरत का ही था, ठीक है. सो शी फियर्ड दिस, उसको डर लग रहा था कि वो ये फाइट कैसे लड़ेगी उससे. शी वॉन्टेड टू कन्फेस, एक बार तो उसके मन में आया कि वो कन्फेस कर ले वो एक्चुअली में लड़की है, लड़का नहीं है. ओके, confessing actually a woman in the guise of a young boy, but she was relieved at once from terror and shame of discovery by a stranger who was passing by. He challenged her rival and said, "If this young gentleman has done any offense, I will take the fault on me, and if you offend him, I will accept for his sake and defy you." Before Viola had time to thank him for her protection or to inquire the reason for interference, the officers of justice came up in that instance and demanded an answer for an offense he had committed some years ago. The gentleman then turned towards Viola and said, "Now my necessity makes me ask for my purse and grieves me much more for what I cannot do for you than for what befalls myself. You stand amazed but of comfort." His words did surprise Viola, and she protested that she did not know him, nor had she ever received any money from him. However, she offered him a small sum of money for the benevolence he just showed to her. The stranger became angry and charged her of ingratitude and unkindness, but the officers cared little for the complaints of their prisoner and hurried him off. As he was carried away, he called by the name of Sebastian, reproaching him for disowning his friend. When Viola heard herself to be called Sebastian, she conjectured that she had been mistakenly identified with her brother. Besides, she began to cherish hope that it was a brother whose life this man had saved. The stranger Antonio was the captain of a ship. He rescued Sebastian and gradually became a friend of him. When the youth expressed curiosity to visit Orsino's court, Antonio came with him to Illyria, though he knew that his life would be in danger, as he had once dangerously wounded the duke's nephew. This was the offense for which he was now made a prisoner. Alright. यहाँ क्या है कि जब ये डुएल की बात चल रही होती है, फाइट की बात चल रही होती है, उस वक्त एक स्ट्रेंजर आता है जो वायला को ये तसल्ली देकर, लाइक सिसेरियो समझता है उसको, लड़का ही समझता है उसको, वायला को ये तसल्ली देता है कि वो ये फाइट लड़ने को तैयार है उसके लिए. ओके, बिकॉज उसके अंदर सिंसियरिटी है, ही एडवांस सेव्ड हिज लाइफ, तो फिर से ये उसकी जिंदगी जरूर बचाएगा. एंड ही सेज दैट अगर उसने कुछ भी फॉल्ट किया है या उससे कुछ भी गलती हुई है तो वो ब्लेम मैं अपने ऊपर लेने को तैयार हूँ, ये बात बोलता है वो.
ओके, जस्ट वो ये बात कह ही रहा था जब वायला को रिलीफ फील होने लगता है कि चलो कोई तो मेरे इंस्टेड यहाँ पे ये डुअल फाइट कर लेगा, ये उस चैलेंजर के साथ ये लड़ाई लड़ लेगा। वो रिलीव फील कर रही थी और वो स्ट्रेंजर ये बात बोल ही रहा था। उसी वक्त जो ऑफिसर्स है वो आ जाते हैं उस स्ट्रेंजर को पकड़ने के लिए, उस बिकॉज वो एक प्रिजनर रहता है और उसको साथ में लेकर जाने के लिए आ जाते हैं। इसके बाद वो स्ट्रेंजर वायला से ये बात बोलता है कि मैंने तो तुमको ग्रैटिट्यूड दिखाया है, मैंने तुमको लाइक अपनी अच्छाई दिखाई है, अब तुम्हारी बारी है अच्छाई दिखाने के लिए। जो पैसे मैंने तुमको दिए थे तुम्हारी जान बचाने के लिए, तुम्हारे लाइक तुम्हारे बेनिफिट के लिए, वो पैसे अगर तुम मुझे वापस दे दोगे तो मैं इन ऑफिसर्स को वो पैसे दे पाऊंगा जो मुझे देना है इन लोगों को। तो वायला बहुत अमेज्ड हो जाती है, एक्चुअली शी इज़ वेरी शॉक्ड कि ये क्या बोल रहे हैं, मैं तो कभी मिली भी नहीं हूँ इससे। तो फिर वो ये बात बोलती है कि आई डोंट नो यू, सो हाउ इज़ इट कि मैंने पैसे लिए हैं तुमसे, आई डोंट इवन नो यू, वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, हाउएवर शी ऑफर्स हिम अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी बिकॉज उसने जो बेनोवलेंस दिखाया, उसको जो हमदर्दी की उसके साथ, इस चीज़ के लिए वो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी उसको देने के लिए तैयार होती है। हाउएवर ये जो ऑफर रहता है उसका, ये स्ट्रेंजर को बहुत गुस्सा कर लाइक नाराज कर देता है और वो उसको ब्लेम करता है इन ग्रैटिट्यूड और अनकाइंडनेस के लिए। वो बोलता है कि बहुत अनकाइंड है वायला जो है, मतलब वो लाइक सिसेरियो जो है, ये यंग बॉय जो है। ऑफिसर्स को कोई परवाह नहीं रहती है, वो लोग वो स्ट्रेंजर को वहां से लेकर चले जाते हैं। जब वो लेकर जा रहे होते हैं तो वो स्ट्रेंजर उसको सेबास्टियन के नाम से पुकारता है वायला को। वायला को तब उसको ये बात समझ में आती है कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी की वजह से हो रही है ये सारी चीज़ें। एंड कहीं ना कहीं उसको इस बात की खुशी भी होती है, इस बात का लाइक इस बात की उम्मीद मिलती है उसको, दैट मीन्स कि सेबास्टियन की ज़िंदगी इसने बचाई है, तो सेबास्टियन कहीं ना कहीं ज़रूर है, वो जिंदा है और कहीं ना कहीं है। वो स्ट्रेंजर जो रहता है वो एंटोनियो उसका नाम रहता है, वो किसी शिप का कैप्टन रहता है जिसने सेबास्टियन की ज़िंदगी बचाई होती है और उसका एक अच्छा फ्रेंड भी बन जाता है, जिसकी वजह से वो पैसे वैसे भी देता है उसको और इन रिटर्न वो ये चाहता है कि सेबास्टियन उसको उसके पैसे लौटा दे। और यहाँ पर आकर वायला को देखकर, बिकॉज वायला बिल्कुल आइडेंटिकल ट्विन थी, लाइक सेबास्टियन की तरह ही दिखती थी बिल्कुल, और क्योंकि अभी मेल अटायर में थी वो, तो सेबास्टियन ही लग रही थी उसको, तो इसीलिए वो वायला से पैसे मांगता है। ओके, ऑलराइट। और वो एंटोनियो जो रहता है, एंटोनियो की ये गलती रहती है जिसकी वजह से वो प्रिजनर बनता है। एंटोनियो की गलती ये रहती है कि जब वो बहुत पहले ड्यूक ऑर्सिनो के कोर्ट आता है, लाइक इलीरिया आता है ड्यूक ऑर्सिनो के कोर्ट, वहाँ पे उसने ड्यूक ऑर्सिनो के किसी नेफ्यू को मार दिया होता है, लाइक एक्चुअली चोट पहुंचाता है, वो मार नहीं दिया होता है, लाइक वूंडेड कर देता है उसको, उसी के पनिशमेंट के तौर पर उसको प्रिजनर बनाकर रखा जाता है एंटोनियो को। Antonio and Sebastian had landed together. He had given his purse to Sebastian, desiring him to use it freely as the latter went to see the town. Antonio और Sebastian दोनों एक साथ ही उतरे थे वहां पर इलीरिया में, और एंटोनियो जो है सेबास्टियन को अपना पर्स देता है और बोलता है तुमको जैसा खर्चा करना है तुम खर्चा कर सकते हो, और एंटोनियो वो टाउन देखने चला जाता है। सिंस सेबास्टियन डिड नॉट रिटर्न एट द शेड्यूल्ड आवर, एंटोनियो हैड वेंचर्ड टू लुक आउट फॉर हिम एंड फाउंड वायला। सेबास्टियन जो है वो सेड टाइम में, वो जब मुकर्रर हुआ था जो वक्त कि जब यहाँ पे हम लोग मिलेंगे, वो नहीं पहुंचता है, तो उस वक्त एंटोनी की मुलाकात वायला से हो जाती है, और यही वजह रहती है जिसकी वजह से ये कंफ्यूजन होती है। Her identical twin sister in the guise of a young man whom he mistakenly identified to be Sebastian. Sebastian समझने लगता है वो उसको। He drew out a sword to save the youth. When Viola refused to recognize him and did not hand over the purse to him, she was accused of ingratitude. So what happens? Viola तो पहचानती नहीं है obviously because she is meeting him for the first time. तो जब वो ये बात बोलती है that I don't even know you, वो पहचानने को तैयार नहीं होती है उसको, एंड ना ही वो कोई पर्स उसके हैंड ओवर करती है। तो ये बात जो है वो लाइक एंटोनियो को बहुत बुरी लगती है कि मैंने इतनी हेल्प की इसकी, जब हम लोग दोनों एक साथ लैंड किए यहाँ पे लीरिया में, इतनी हेल्प की मैंने इसकी, और बदले में ये इतना ज़्यादा
इनग्रैटिट्यूड, इतना अनग्रेटफुल है, ठीक है, मेरा एहसान भी नहीं मान रहा है ये. Okay, all right. Students, we'll stop here today. Okay. जहाँ तक I've explained, please go through that portion, read it by yourself. और जो भी word या फिर कुछ भी ऐसा portion है जो difficult लगता है, please underline it and you can ask in the comment section of this video. Okay. Revise what have been done before, जो previously explain हुआ है उसको भी revise कर लेना, एक बार reading कर लेना. Okay, we'll continue with this chapter in the next video. That's it for today. Thank you, students.